इसका इस्तेमाल अमूमन तब किया जाता है जब एक मुसीबत के साथ फौरन ही दूसरी मुसीबत भी आ जाए। हाँ जी, एक बिल जमा कराओ नाल दूसरा आ जाए। हाँ, तो आप कह सकते हैं कि यक न शुद्ध दो शुद्ध। अब अमूमन इंतहाई संगीन हालात में भी, संगीन सिचुएशन पे भी इस कहावत का इस्तेमाल किया जाता है कि भाई यक न शुद्ध दो शुद्ध। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਉਤੋਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆ ਜਾਣੇ, ਇਹੀ ਕਹੀਦਾ ਯਕ ਨਾ ਸ਼ੁੱਧ ਦੋ ਸ਼ੁੱਧ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਾ ਹਾਦਸਾਤ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ, ਕਦੀ ਸੌਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਬੱਚਾ ਗੁਆਚ ਗਿਆ। अच्छा, इस पे मुझे अरबी की कहावत याद आती है, वो ज्यादा फिट होती है यहाँ। ਲਓ ਜੀ, ਫਾਰਸੀ ਚੋਂ ਜੰਪ ਕਰਕੇ ਅਰਬੀ ਚ ਚਲੇ। ला यंज़लुल बलाई मुतवाहिदा। अरबी में कहते हैं कि मुसीबत कभी तन्हा नहीं आती। ਯਾਨੀ ਸੱਸ ਜਦੋਂ ਆਂਦੀ ਸਾਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਉਂਦੀ। ला यंज़लुल बलाई मुतवाहिदा। ਅਲਸਾਸੁਨ ਨਾ ਹਮ ਅਕੇਲਤੁਨ ਆਇਆ ਹੂੰ, ਨਾਲ ਸਾਲੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਢੇਰ ਲੈ ਆਇਆ ਤੂੰ, ਐਂਡ ਘਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤੂੰ। ਅੱਜ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਮੁਤਹਿਦਾ ਅਰਬ ਇਮਾਰਾਤ ਚ ਕਰ ਰਹੇ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ, ਉਂਝ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਵੜਨ ਦਿੰਦਾ। अच्छा जी, जिस कहानी, जिस सिचुएशन से ये कहावत निकली है, उसके 4 किरदार हैं बुनियादी तौर पे, और वो चारों किरदार जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक इस कहावत कहानी में है जादूगरनी। ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਾਸੂਮ ਜੀ ਆਦਮੀ ਕਿਤੇ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਏ। ਕਾਲੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਕਾਲੇ ਰੋ ਮੀ ਵਸਾ ਦੇ ਜ਼ਾਰਾਂ ਜ਼ੋ। ਇਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਂਸਰ ਲੱਗ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾ, ਜੀ ਉਸਤਾਨੀ ਜੀ, ਐ ਸੋਨਾ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਮੁਸ਼ਾਹਰੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ। अच्छा जी, ये हैं जादूगरनी और ये हैं इनके शागिर्द। और इस शागिर्द ने मखसूस मंतर हासिल करने के लिए इस जादूगरनी की 20 साल खिदमत की। 20 ਸਾਲ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਹ ਦੱਸਣਾ ਸੀ, ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਮਰੋ ਚਾਚੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਰੁਕਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਸਾਹ ਤੇ ਕਦੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। कहावत कहानी में एक मुर्दे का भी किरदार है। जब कहानी आगे बढ़ती है तो इस मुर्दे का किरदार कहानी में इंतहाई अहमियत का हामिल हो जाता है। ਇਸ ਲਾਸ਼ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਭੋਰਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿੱਜੂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਡਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਕਹਾਣੀ ਚ ਕੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ये जादूगरनी, ये शागिर्द, ये एक मुर्दा, और इस मुर्दे के आप कज़न हैं। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਯਾਰ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇਖਿਆ। ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਈ ਜਾਣਾ, ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਚਾਚੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜੇ ਲਾਸ਼ ਵੇਚਣ ਆਏ ਆ। ये कहावत उस वक्त बोली जाती है जब ये बताना मकसूद हो एक मुसीबत अभी टली नहीं थी कि दूसरी आ गई। एक जादूगरनी रहा करती थी और काले इल्म में महारत हासिल करके उसने ये मलका हासिल कर लिया था कि वो थोड़ी देर के लिए किसी भी मुर्दे को जिंदा कर लेती थी। ਆਂਟੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁਰਦਾ ਵੀ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੁਰਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਉੱਠਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਮੁਰਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਜਾਨ ਛਡਾਉਂਦੀ ਫਿਰੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕਸਾਈ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਵਹਿੜਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਗਾਣਾ ਕਰੀ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿੰਗਰ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ 4 ਘੰਟੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਹਾਫੀ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਚਾਹ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰ ਕਬਰ ਦੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਕਤਬੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਲਮ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਉੱਠੇ ਸਹਾਫੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੱਸ। ਚਾਚੀ, ਇਹ ਨਾਈ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਟਿੰਡ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 4 ਮੁਰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਉਠਾਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਆ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਬਿਠਾਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁਰਦੇ ਠਾਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿੱਕਰ ਨਾ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਫੈਂਟੀ ਲਾਈ ਨਾ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਜਾ ਸਰਾ ਉਠਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਚੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਨਾਸ਼ਤੇ ਵਾਲਾ ਉਠਾਇਆ, ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਦਤਾ। ਇੱਕ ਨਸ਼ਈ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਬਸ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੁਰਦਾ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਉਹ बेचारा खंगी जाए। कहानी ये बताती है कि काला इल्म कर करके 2 मंत्र इस जादूगरनी के हाथ लग गए थे। एक मंत्र जब ये पढ़ती थी तो मुर्दा उठ बैठता था और दूसरा मंत्र जो था वो उस मुर्दे को वापस कब्र में भेजने का था। अलबत्ता इन मंत्रों के पुरअसर होने के लिए कुछ शराइत भी थी। जब ये मुर्दा उठा लेती थी तो मुर्दे के पास आधे घंटे का वक्त होता था। उस आधे घंटे में उस मुर्दे से आप जो भी गुफ्तगू करना चाहें, जो भी पूछना चाहें, वो बात करता था, सवालात के जवाबात देता था। मगर शर्त यह थी कि मुर्दे का कोई खूनी रिश्तेदार जो है वो उस वक्त मौजूद हो जब ये मुर्दे को जिंदा करने वाला मंत्र पढ़ रही। मेरा एक रिश्तेदार सी, उन्हें मेरा 10,000 रुपया देना सी, उन्हें उठाया, देख के मैंने फिर मर गया। अगर ये जादूगरनी किसी मुर्दे को उठाए और उस मुर्दे का खूनी रिश्तेदार साथ ना हो
तो मुर्दे को उठने के बाद कुछ होश नहीं होती थी, न वो किसी को पहचान सकता था, न किसी से कोई बात कर सकता था, न किसी की बात का कोई जवाब दे सकता था, और वो वाइल्ड हो जाता था। इसलिए ये लाजिम था कि जो मुर्दा उठे उसका खूनी रिश्तेदार मंत्र पढ़ते वक्त जादूगरनी के साथ हो। हाँ जी, इन्हें एक बारी मुर्दा उठाया जनाब, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੌੜ ਗਿਆ। बस वो मुर्दा हो गया पागल जनूनी। बस फिर जादूगरनी अगे अगे ते मुर्दा पिछे पिछे। ये जंगल च वड़ गए। थोड़ी देर बाद देखा तो मुर्दा अगे अगे ते जादूगरनी पिछे। जादूगरनी चुप करके दौड़े, मुर्दा करता है। अच्छा जी, हुआ ये कि जो शागिर्द था उसने बड़ी खिदमत की, बड़ी ख्वाहिश की कि भाई जादूगरनी जो है वो दोनों मंत्र जो काले इल्म के ज़रिए उसने हासिल किए थे, एक मंत्र से मुर्दा जिंदा होता था, और फिर गुफ्तगू करने के बाद अगर रिश्तेदार मुर्दे का साथ हो, ये बड़ा अहम नुक्ता है, साथ हो तो गुफ्तगू करता था, अदरवाइज वो जुनूनी हो जाता था, और दूसरे मंत्र से फिर मुर्दा वापस कब्र में जाता था। तो 2 मंत्र थे। तो जादूगरनी ने सारी ज़िंदगी अपने शागिर्द को ये मंत्र नहीं सिखाए, मगर जब जादूगरनी की मौत का वक्त करीब आया तो इसको तरस आ गया अपने शागिर्द पे कि बहरहाल ये मेरा शागिर्द रहा है, 20 साल से ज़्यादा इसने मेरी खिदमत की है, तो मरने से पहले ये अपने शागिर्द को वो दोनों मंत्र सिखा गई। एक मुर्दे को उठाने वाला और एक दोबारा उसको कब्र में भेजने वाला। जी, ਇਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬੜਾ ਖੋਚਲੇ ਸਰ ਜੀ। ਇਧਰੋਂ ਮੰਤਰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਮਰ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਗਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਏਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਠਾ ਲਾਂਗੇ। शाहजी, ये मुर्दे उठाती क्यों थी? हाँ भाई देखिए, ये जो कहावत है यक न शुद्ध दो शुद्ध, जो इसकी बुनियादी कहानी है, उस कहानी में ये मुर्दे इसलिए उठाती थी कि पैसे वैसे लेती थी, काले इल्म की माहिर थी। ਚਾਚੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਨੀ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ 2 ਤਲਾਕਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਤੀਜੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਰਿਆ। ਇੱਥੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਤਾ, ਮਿਰਜ਼ਾ 3 ਵਜੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੈਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਵਾਤਾ। अच्छा, मैं कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि बुनियादी माने इस कहावत के क्या हैं। यक न शुद्ध दो शुद्ध। यक का मतलब हुआ एक, दो यानी कि 2, और शुद्ध का मतलब है फारसी में हुआ, पास्ट टेंस के तौर पे इस्तेमाल होता है, हुआ। यक न शुद्ध दो शुद्ध यानी एक ना हुआ 2 हुए। बहरहाल कहावत कहानी आगे बढ़ती है, जादूगरनी की मौत वाक़ हो जाती है, और वो 2 मंत्र जिससे मुर्दे को उठाया जाता था और दोबारा मारा जाता था वो शागिर्द के हाथ आ जाते हैं। शागिर्द बड़ा ही लालची आदमी था। अब शागिर्द को एक्साइटमेंट तो होती है कि भाई मैं भी इन मंत्रों का इस्तेमाल करूं और फिर मुर्दे को उठाऊं और फिर उससे पैसा भी कमाऊं और फिर उनको दोबारा मार दूं। तो ये क्लाइंट शागिर्द के हाथ आ जाता है। इसको अपने कज़न से कुछ पूछना होता है, ये इसको देता है 50,000 रुपए, और जादूगरनी का शागिर्द मंत्र पढ़ के इस मुर्दे को उठा लेता है। ਚਾਚੀ ਯਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਮਰਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ 10 ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਸੀ। शागिर्द बड़ा एक्साइटेड होता है कि भाई इस मरतबा मैंने मंत्र पढ़ा और मुर्दा उड़ गया। इसी एक्साइटमेंट में मुर्दे को दोबारा मारने वाला जो मंत्र है वो शागिर्द भूल जाता है। ਇਹ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੇਰੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਸੌਂ ਲਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਬਰ 'ਚ ਚੰਗਾ ਸਾ ਬਹੁਤ ਹਮਕ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੀ ਮੰਜੀ 'ਚ। अब होता ये है कि जब शागिर्द मुर्दे को दोबारा मार नहीं सकता है तो आधे घंटे के बाद मुर्दा जुनूनी हो जाता है। अब शागिर्द आगे आगे और मुर्दा पीछे पीछे। शागिर्द को कुछ समझ नहीं आती कि भाई करे तो क्या करे। घबराहट में वो जादूगरनी की कब्र पे जाता है और एक ही मंत्र उसे आता है, वो मंत्र पढ़ के जादूगरनी को उठाता है। ਵੇ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਮੁਰਦੇ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। अच्छा जनाब, आपको याद होगा कि मुर्दा उठाने के साथ एक शर्त ये थी कि मुर्दे का जो खूनी रिश्तेदार है वो ज़रूर वहाँ मौजूद होगा। इत्तेफाक से जादूगरनी का दुनिया में कोई भी खूनी रिश्तेदार जिंदा नहीं था, लिहाजा जादूगरनी जब उठी है तो उसने अपने शागिर्द को पहचानने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि जादूगरनी हो गई जुनूनी। ये तो वैसे नहीं सी मां तो जुनूनी हो गई। और उस कैफियत में जादूगरनी ने भी अपने शागिर्द को आगे दौड़ा दिया। अब शागिर्द आगे आगे दौड़ता जाता था, उसके पीछे वो मुर्दा था जो पहले ही दफन नहीं हो रहा था, और ऊपर से जादूगरनी भी उसके पीछे दौड़ रही थी। तो शागिर्द दौड़ता जाता था और कहता जाता था कि यक न शुद्ध दो शुद्ध। कहा जाता है कि उसी रोज से जब किसी शख्स को एक मुसीबत की मौजूदगी में दूसरी मुसीबत को भी झेलना पड़ जाए तो बेख्तियार उसके मुंह से निकलता है कि यक न शुद्ध दो शुद्ध। अच्छा ये बताइए, आप आई गई हैं हमारे प्रोग्राम में
किस मुर्दे ने आपको सबसे ज्यादा तंग किया? ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਕਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਉੱਠਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਛਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈਣੇ ਨੇ।